Good morning, my dear students. Welcome to the computer class. This is the unit 1 of subject specific skill, that is information technology and IT's application also. So let us understand the introduction of IT first, that is information technology. Information technology means to create, manage, store and exchange of data via various methods. To transfer, create and store data, we need many technologies such as computer, software and hardware, etc. These technologies helps us to manage the data in a significant way. Information technology mean आप क्रिएट कर सकते हो, मैनेज, स्टोर और एक्सचेंज करके रखना डेटा को कुछ मेथड्स के थ्रू, ट्रांसफ़र करना, क्रिएट करना, स्टोर करवाना डेटा को, उन सब चीज़ों के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि वी नीड सम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर फॉर दैट. दीज टेक्नोलॉजीज़ हेल्प्स अस टू मैनेज द डेटा. यही सारी टेक्नोलॉजीज़ हमारी हेल्प करवाती हैं हमारी डेटा को अच्छे वे के साथ मैनेज करवाने में. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ enabled services, ITs. Here we are going to do the introduction about ITs, that is enabled services. What kind of services that information technologies have also provided us, we are going to know about this now. Information technology can be seen in every industry. This technology regulates the functioning of the industry smoothly. Those industries which enable information technology to provide quality services is called information technology enabled services, that is ITs. Some industries also use more and many other technologies that are also known as the remote services. So let us understand the meaning of this first. Information technology जो है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ की जाती हैं और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ जो है रेगुलेट करती हैं सारी फंक्शनिंग को स्मूथली, जो है स्मूथ वे के साथ इंडस्ट्री के वर्क को चलाने के लिए. और जो इंडस्ट्रीज़ अनेबल करवाएगी हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, वो प्रोवाइड करवाती हैं अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज, जिनको हम कहें तो वो चीज़ है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled services. That means we are enabling some services using some technologies. Some industries also use web enabled services. कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेब enabled services को या रिमोट सर्विसेज को यूज़ करवाती हैं so that उनका जो वर्क है वो efficiently चले. Next we are having BPO services, that is the one of the most important IT's service. Business process outsourcing services mean those business operations which are performed by an outside services provider. In other words, you can say that some industries take help from other services providers to facilitate their work. They hire some outsourcing companies for that work, and those outsourcing companies is called BPO. BPO means business process outsourcing. ये ऐसी सर्विसेज हैं जिसका मतलब है आपको बिज़नेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाना, आउटसाइड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना. अदर वर्ड में हम कहें तो आप कह सकते हो कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जैसे आपकी हेल्प करवाती हैं सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए, ताकि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड होती रहे कोई ना कोई काम करने के लिए. एंड दे हेयर सम आउटसोर्सिंग कंपनी, उनके साथ साथ कुछ आउटसोर्सिंग कंपनीज होती हैं और उन सोर्सिंग कंपनी को हम BPO, दैट इज़ बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिज़नेस के प्रोसेस में आउटर सोर्सेज को प्रोवाइड करवाने वाली कंपनीज़ को हम BPO सर्विसेज कहते हैं. सम ऑफ द BPO सर्विसेज आर एज फॉलोज. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सर्विसेज, बिज़नेस के प्रोसेस में जो आउटसोर्सिंग है वो आपके फाइनेंस से रिलेटिंग, अकाउंट से रिलेटेड. टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, बिजनेस के स्ट्रीम में आपके पास टैक्स और इंश्योरेंस के सारे स्ट्रीम रहते हैं. ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज, कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया, बिकॉज बिजनेस में आपके पास सारे मल्टीमीडिया, दैट इज़ ऑडियो, वीडियो और एज वेल एज यू ग्राफिकली अगर आपने कुछ डेटा को रिप्रेजेंट करवाना है, शेयरिंग ऑफ डेटा रखना है विद द हेल्प ऑफ साउंड, दैट ऑल विल बी द पार्ट ऑफ डिज़ाइन एंड मल्टीमीडिया. Document management services, if you are receiving some data or you are forwarding some data, that is a document management services under BPO. Software testing services, healthcare services. Some BPO industry in India now, some of the industries that are present time in the India, they are
what kind of work they are handling this time. The IT BPM, that is business process management industry, is doing an exceptional job in the growth of India. बिज़नेस के प्रोसेस के मैनेज करने के लिए ये सारी इंडस्ट्रीज़ आपकी ग्रोथ के लिए इंडिया के काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है. दिस इंडस्ट्री प्रोवाइड्स क्वालिटी सर्विसेज. क्वालिटी की सारी सर्विसेज इन सारी कंपनीज़ के थ्रू है. वी कैन से दैट इट हैज़ बिन फिलिंग इंडियाज़ ग्रोथ. इंडिया की सारी ग्रोथ, इंडिया के जॉब की क्वालिटी ग्रोथ, ये सारा जो वर्क है वो BPM, दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो सर्विस हैंडल करती है. नेक्स्ट वी आर हैविंग BPO सर्विस इंडस्ट्री इज एक्सपैंडिंग इन इंडिया एट ग्रेट पेस ड्यू टू द फॉलोइंग एडवांटेजेस. उसके कुछ एडवांटेजेस हैं. सम ऑफ द एडवांटेजेस आर BPO service provider in India invest a lot of money in the new technologies. BPO, that means I have explained you already, business process आउटसोर्सिंग. सारी ये सर्विसेज की जो कंपनीज़ हैं उन्होंने इंडिया में काफ़ी इन्वेस्ट किया है टेक्नोलॉजीज़ के लिए, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए. द एंड दैट इंश्योर्स टू प्रोवाइड एरर फ्री सर्विसेज. उसके थ्रू उनकी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो एरर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाने में एफिशिएंट है. दे आर इन्वेस्टिंग इन क्वालिटी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू गिव अस बेटर परफॉर्मेंस. Next advantage is Government of India is also providing then backbone support to them. The government provides the necessary infrastructure and logistical support to them to make their work easy. इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके लिए बैकबोन सपोर्ट करती है ये BPM इंडस्ट्रीज़, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनको नेसेसरी है, उनको रिक्वायर्ड है अपने वर्क को ईजी करवाने के लिए. BPO industry in India is highly developed and they are capable of giving us quality services. They are trying to become more and more advanced. This time BPO industries are trying to become more advanced with the help of technologies. Structure of IT BPM industry, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है बिजनेस प्रोसेस की जो आपकी कंपनी है BPM जो है आपकी, वो किस तरह की सर्विसेज जो है BPM दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट जो आपकी कंपनी है वो किस तरह के स्ट्रक्चर को फॉलो करती है. मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स, ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स. टुडे दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ IT. किस तरह का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्ट्रक्चर को हैंडल करती है बिजनेस प्रोसेस की मैनेजमेंट इंडस्ट्री. मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इनके अंडर दोज कंपनीज हुज headquarters is in outside India but are operating their work in many locations worldwide is called multinational companies. These companies provide a number of jobs. इनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनीज़ होंगी, वो कंपनीज़ जो इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इंडिया के आउटर साइड में भी वर्क करे, लेकिन वो हर एक लोकेशंस में अपना वर्क जो है कर रही हैं. वो सारी कंपनीज़ आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं और ये कंपनीज़ प्रोवाइड करवाती हैं नंबर ऑफ जॉब्स with the help of technologies. Next we are having Indian service providers, ISP, that is the internet service or Indian service providers are those providers whose operations are in India. जिनका सारा काम इंडिया में ही सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना. वो मल्टीनेशनल था. दिस इज़ फॉर द इंडिया सर्विसेज प्रोवाइडिंग ओनली. मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस हैव देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया. इनके सारे हेडक्वार्टर्स सिर्फ इंडिया में ही हैं. सारी जॉब्स जो हैं वो सारे काम जो है वो इंडिया में ही रहेंगे. ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, GIC is most important part of the structure of IT BPM industry. That is, GIC organizations work for the parent company. They have to fulfill the parent company's work. That means, let's suppose if I am having one company in one state or in one country, and if I am having the other I am having the same branch in other country. So if I want to handle all the working of the parent company, so that process can be handled with the help of the GIC, that is the global in-house centers. With this, our topic of today's lecture is completed, and the rest of the topic of this chapter we will do later on, and you all have to do revision of the topic of this chapter. Side by side, I will send you the work of all the topics. You complete in your notebook as well as do the revision as well for your term 1 exam. Best of luck. Thank you.